સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને? यस मैम. ઓકે, સો લાસ્ટ ટાઈમ સ્ટાર્ટ કરીએ. હજી આયા નથી બહુ બધા, બટ લેટ અસ સ્ટાર્ટ. બાકી બધા ધીમે ધીમે જોઈન થશે ત્યારે. ઓકે, સો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે શું જોયા હતા? કેવી રીતે ક્રિએટ ટેબલ કરવાનું, કેવી રીતે ઇન્સર્ટ કરવાનું, આ બધું બરાબર. અને તમારામાંથી કોઈનું ક્વેશ્ચન હતું કે આ એસક્યુએલ ડેવલપરનું શું કરવાનું છે, કે એવી રીતે કોઈ ક્વેશ્ચન હતું તો यस मैम मारो जो तो. ઓકે, સો આઈ એક્સપ્લોર્ડ અ લિટલ બિટ કે આમાં મેં શું જોઈ કે આમાં ક્રિએટ ટેબલ ને આ બધું બહુ ઇઝીલી એટલે ડાયરેક્ટલી થઈ જાય છે. ઓકે, સો યુ ડોન્ટ હેવ ટુ યુઝ ઇટ. હવે કેવી રીતે આપણે એસક્યુએલ ડેવલપરનો યુઝ શું છે? પહેલી વસ્તુ તો ક્યાંથી મળ્યો એમાં જો. મારામાં ડી ડ્રાઈવમાં છે, તમારામાં તમારા પીસીમાં તમે જોઈ લેજો. આ જે એસક્યુએલ ડેવલપર વાળું ફોલ્ડર છે, પેલા આને અનઝિપ કરવા પછી મને આ ફોલ્ડર મળ્યો, પછી આ એપ્લિકેશન. ઓકે, એને કરીએ આપણે, એના પછી અમને મળશે ધીસ પેજ. વી વિલ ગેટ ધીસ પેજ. આ બંધ રહેશે, ડેટાબેઝ ડેટા કનેક્શનનું નામ મારું છે DBMS. ઓકે, ઓપન કરશું પછી આવી રીતનું કંઈક દેખાશે. તો ટેબલ્સમાં જઈએ, મેં 2-3 ટેબલ ક્રિએટ કરીને જોઈ, તો ડાયરેક્ટલી હું અહીંયાથી ક્રિએટ કરતી હતી તો મને I was getting the data directly. मतलब આવી રીતે તમે કોલમ એડ કરવું છે કરી શકો, ડેટા નાખી શકો. We don't have to use this in for exam purpose. Okay, why? કેમ કે આપણે બેસિક વસ્તુ હું એક સ્ટેટમેન્ટ કહેવા માંગુ છું, આપણે ડેટા એન્ટ્રી કરવા માટે નથી, આપણે કોડિંગ કરવા માટે છીએ, રાઈટ? ડેટા એન્ટ્રી નથી કરવાનું આપણને. ઓકે, સો કેવી રીતે આપણે કોડિંગ કરીશું? એટલે કોડિંગમાં શું આપણે ક્યાંથી કરીએ? અહીંયાથી. ઓકે, SQL પ્લસ એટલે કોન્સોલમાં આ કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટમાં હું કોઈ બી કોડિંગ કરું તો વસ્તુ ક્યાં સ્ટોર થશે? કોઈ ડેટાબેઝમાં સ્ટોર થવી જોઈએ ને. તો that I should find here. Okay, when I'm creating a table, I should find that table there. So let us see a demo table. તો જો A B આવી રીતનું છે, તો એક ડેમો ટેબલ ક્રિએટ કરીએ. ક્રિએટ A1. ઓકે, A1 નામનું ટેબલ અહીંયા નથી, ડાયરેક્ટલી B આવી જાય છે. ઓકે, A1 નથી. So let us create this. Create table A1. ઓકે, પછી ખાલી એક જ ફિલ્ડ રાખું છું, નેમ varchar2. ઓકે, varchar લો કે varchar2 લો, એ ઓટોમેટિકલી varchar2 માં કન્વર્ટ થઈ જશે, કેમ કે વર્ઝન ડિફરન્સ, બાકી ફંક્શનાલિટી કોઈ ડિફરન્સ નહીં. ઓકે, તો એ ઓટોમેટિકલી કન્વર્ટ થઈ જશે, કોઈ ઇશ્યુ નહીં. સો ટેબલ ક્રિએટેડ આવી જોઈએ. લેટ્સ સી. ઓકે, છે. તો હવે મેં અહીંયા જોઉં ને ટેબલ ક્રિએટેડ, હવે શું કરવાનું? Close it, again open it, then tables. Is there any A1? Not there yet. Refresh here. ठीक है, અહીંયા ટેબલ 1 ક્રિએટ થઈ ગયો. અહીંયા મેં ક્રિએટ ક્લિક કરી તો થઈ ગયું. હવે ડેટા પર જોઈએ, ડેટા તો કઈ છે જ નહીં, તો ડેટા માટે શું કરવાનું? ઇન્સર્ટ કરવું પડે. ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ A1 values high. Okay, one row inserted. Let's see if it has been inserted or not. Refresh. Slow છે હા મારું લેપટોપ, so forgive me for that. Close this and reopen. So A1 मैंने ओपन किया, अभी डेटा पे जाते हैं. ओह सॉरी, हाँ, तो क्यों आ नहीं रहा है? मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया, बट डेटाबेस में मतलब कि यहाँ पे Oracle SQL डेवलपर में वो दिखा नहीं रहा है. व्हाई? बिकॉज आई डिडंट कमिट इट. सी, आई फॉरगॉट टू कमिट. ओके, तो ये कमिट जब हम कर देते हैं, कमिट कंप्लीट, अब मैं रिफ्रेश करूंगी इसको तो यहाँ पे आ जाएगा डेटा. हाय, आ गया. ठीक है, कमिट किया मतलब कि आपने डेटा को सेव कर दिया, तो अभी यहाँ पे आपको दिखेगा. तो हम जो भी प्रैक्टिकल्स करेंगे वो चीज आप जब कमिट करोगे तो वो वहां यहाँ पे आपका एक एक टेबल बनता जाएगा. फाइन. तो अभी क्लासरूम में कल मैंने एक असाइनमेंट दिया था एम्प्लॉय वाला, तो टेबल मैंने ऑलरेडी बना रखा है. क्या किया मैंने? क्रिएट टेबल एम्प्लॉय. लेट्स सी, सिलेक्ट, चलो DSC करते हैं. DSC
एम्प्लॉय। ओके, तो ये मैंने एम्प्लॉय टेबल कल लैब में बनाया था ए बैच के लिए। सो यू नो हाउ टू क्रिएट टेबल, मतलब मुझे वापस दिखाने की तो जरूरत नहीं है ना, आपको टेबल क्रिएट करना और उसमें वैल्यू डालना तो आता है। तो ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है, उसमें डेटा मैंने 4 डेटा डाल रखा था। इफ यू डोंट नो देन आस्क, मैं वापस से बना दूंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो इफ आई एम डूइंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये 4 डेटा मेरे पास आ गया। अभी ये मैंने बंद किया कल लैपटॉप, वापस से आज चालू किया। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने कमिट कर दिया था। बिफोर क्लोजिंग एवरीथिंग आई कमिटेड, इसलिए यहाँ पे डेटा था, तो अभी डायरेक्टली मैं यहाँ से फेच कर सकती हूँ। ओके, दैट्स व्हाई नाउ आई हैव ऑल द डेटा हियर। फाइन, तो अभी जब मेरे पास 4 डेटा है, तो आज हम 2-3 क्लॉजेस सीखेंगे कि कैसे करना होता है, ठीक है। Okay, first question, my question to you: create table, insert table, describe table, select table. ये 4 चीजों में किसी को डाउट है? सबको आ गया समझ में? एम्प्लॉय टेबल मैंने क्रिएट करके नहीं दिखाया, अगर आप चाहते हो कि आपसे नहीं होगा क्रिएट, क्योंकि अभी आपको करना है, मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिकल, आपको स्क्रीन शेयर करके मुझे बताना है। सो इफ यू थिंक यू डोंट नो हाउ टू डू इट, देन प्लीज आस्क। अगर आप कुछ नहीं बोल रहे तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको आता है, ठीक है। ओके, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये मैंने सारे एम्प्लॉयज डिस्प्ले करा दिया। अब मुझे क्या करना है, इनको ऑर्डर बाय करना है। ऑर्डर बाय का काम क्या है? ऑर्डर बाय से हमको सारे जो डेटा है वो एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। वो कैसे करते हैं? मुझे नेम से ऑर्डर बाय करना है। सो ऑर्डर बाय नेम, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय नेम। अभी स्टार क्यों? क्योंकि मुझे सारे कॉलम्स चाहिए। स्टार की जगह अगर हम राइटिंग एम्प्लॉय आईडी कॉमा सैलरी, तो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और सैलरी डिस्प्ले होगी, राइट। सो आई एम राइटिंग अ स्टार, सो आई वांट ऑल द 4 कॉलम्स। ओके, तो ऑर्डर बाय नेम करते हैं, तो देखो एम पी से पहले आता है। नाउ पार्थ एंड प्राची आर बोथ स्टार्टिंग विद पी, बट ए कम्स बिफोर आर, इसलिए ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ऑर्डर बाय नेम DESC। ओके, तो अभी देखो ये उल्टा हो गया, राज प्राची पार्थ मीत हो गया, मतलब जस्ट ऑपोजिट हो गया। क्यों? डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, सबसे लास्ट में आर आता है, इसलिए आर पहले आ गया। ओके, सो ऐसे ही आप सैलरी को भी कर सकते हो, ऑर्डर बाय सैलरी। सो मिनिमम से मैक्सिमम सैलरी पे, सॉरी ये मैंने डिस्क कर दिया, हाँ तो ठीक है ना। देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी अरेंज हो गई। इफ आई एम रिमूविंग दिस डिस्क, तो सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, देन यू विल हैव टू राइट DESC। क्लियर टिल नाउ? ओके ओके, હવે નેક્સ્ટ વસ્તુ ફિલ્ટરિંગ જ જોઈએ છીએ આપણે। મારી પાસે જેમ બહુ મોટો ડેટાબેઝ છે, જેમ 1 લાખ ડેટાનું ડેટાબેઝ છે, અહીંયા તો 4 જ ડેટા છે। 1 લાખ ડેટાનું છે, તો મને બધા ડેટા તો નહીં જોવાનું ને, તો મને કોઈ પર્ટિક્યુલરલી 1 કે 2 ડેટા જોઈએ છીએ, તો આપણે કેવી રીતે એને ફિલ્ટર કરીશું? એક્સેલમાં ફિલ્ટરિંગ આવે ને, એવી રીતે ફિલ્ટર કેવી રીતે કરીશું? ધેટ ઇઝ ઓન્લી ધ થિંગ, ધેટ ઇઝ ધ ઓન્લી થિંગ વી આર સીઇંગ ટુડે। ओके, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी हो गया, एंड देन ओके, अब देखो वेयर। ओके, अब ये कंडीशन, मुझे फेच करना है पर्टिकुलर कोई चीज, सारी चीजें नहीं, तो वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000। मतलब क्या? मुझे जिसके 60,000 से ज्यादा सैलरी है, मुझे उसी का डेटा चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए। तो कौन है उससे ज्यादा? सुनीत है, ठीक है। बाकी सबकी 60,000 से नीचे। अभी पार्थ की तो 60,000 है, बट यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला है ना, इसलिए इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। अगर ये 60,000 1 रुपी होता तो इसमें आ जाता। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर फिल्टरिंग दिस। अभी अगर 2-3 चीजें देखनी है, ग्रेटर देन 60,000 एंड सैलरी इज लेसर देन 70,000, ठीक है। 60,000 से ज्यादा पर 70,000 से नीचे, तो नो रो सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 60,000 करेंगे तो 40, 50, 60 हट गया, और यहाँ पे लेस देन 70,000 है, मतलब 60 से 70 के बीच में 60 और 70 को जब आप एक्सक्लूड कर रहे हो, तब एक भी अमाउंट नहीं है ना। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा दूं मैं, तो ये 70 वाला केस आ जाएगा।
समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं रखना कोई भी, ठीक है? मैं एग्जाम में बहुत स्ट्रिक्टली चेक करती हूँ, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम में आप करूंगी, थियोरी तो मैं नहीं लूंगी, बट स्टिल प्रैक्टिकल में आई एम वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू ये। तब नहीं बोलना कि मुझे नहीं आता, अगर कोई भी डाउट है आप मुझे 10 टाइम्स पूछोगे, आई डोंट माइंड। ओके, तो ये हमारा वेयर वाला, वेयर मतलब इफ एल्स करते थे ना, सी लैंग्वेज आपने पढ़ी, आपको इफ एल्स आता है, तो इफ, ये इफ कंडीशन ऐसा ही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इफ सैलरी इज ग्रेटर देन दिस एंड सैलरी, वहां पे आप डबल एम्परसेंड लगाते थे, यहाँ पे एंड लगाते हैं। ओके, तो सैलरी इज लेस देन 70,000, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही है तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वरना नो रोज सिलेक्टेड ऐसा आएगा। ठीक है, लेट्स डू वन मोर थिंग, अभी ये वाला रहने देते हैं। अभी सैलरी, अब मुझे रेंज डालनी है, ग्रेटर देन लेस देन करने से अच्छा मैं रेंज डालूं कोई, तो रेंज कैसे डालेंगे? सैलरी बिटवीन, अब ये बिटवीन होता है ना, बिटवीन कीवर्ड है, ठीक है, आपको याद रखना है, बिटवीन इज अ कीवर्ड, और बिटवीन क्या क्या है वो मुझे लिखना है। सो लेट मी राइट 50,000 एंड 70,000। अब इसमें डिफरेंस देखना, ये वाले लेस देन वाले में और इसमें डिफरेंस देखना क्या आता है। देखो इसमें 50, 60, 70 तीनों आ गया, क्यों? इसमें तो सिर्फ 60,000 आना चाहिए था अगर हम ऐसा देख रहे हैं तो, बट बिटवीन में क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल्स होते हैं। आपको पता है क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल आपने पढ़ा है मैथ्स में? अगर राउंड ब्रैकेट्स होते हैं तो ओपन इंटरवल होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं तो क्लोज्ड इंटरवल होता है। डू यू नो दैट? यस मैम। हाँ, सो इफ यू नो, तो यहाँ पे सैलरी इज बिहेविंग लाइक अ क्लोज्ड इंटरवल। ओके, सो 50,000 और 70,000 के बीच में, मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल करोगे तो मतलब 50,000 और 70,000 दोनों इंक्लूडेड है। यहाँ पे क्या हो रहा था? 60 और 70 एक्सक्लूड हो जा रहे थे, मतलब 60,001 से लेकर 69,999 तक जा रहा था। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? 50,000 से 70,000 तक जा रहा है, इसलिए सारी चीजें आ रही है। सो दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ बिटवीन। एंड इफ आई एम आस्किंग यू कि ग्रेटर देन, वाइवा में अगर पूछ लूं कि ग्रेटर देन लेसर देन है और बिटवीन है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो आप बोलोगे अगर ग्रेटर देन है तो वो एक्सक्लूड हो जाता है, एक पॉइंट जो यहाँ पे नंबर लिखा है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उससे एक पॉइंट ज्यादा लेते हैं। पर बिटवीन में क्या है? ये दोनों इंक्लूड करते हैं, तो बिटवीन इज इक्विवेलेंट टू लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल। ठीक है, सो इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करके याद रखना है। अब बिटवीन हमने सीख लिया, वेयर हमने सीख लिया, ऑर्डर बाय हमने सीख लिया। अभी दूसरी चीज देखते हैं, इन। ओके, सैलरी इन नाउ 40,000 एंड नहीं कॉमा 70,000। अब इसमें आपको क्या लगेगा? सैलरी इन अराउंड ब्रैकेट्स। ओके, ये सिंटैक्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, इसको याद रखो। इन का मतलब क्या हुआ? या तो 40,000 या फिर 70,000, नॉट रेंज। ये रेंज नहीं है, ठीक है, ये एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट है। ये जो आपने लिया है ये सेट जैसा इमेजिन करो, आपने सेट पढ़ा होगा। अगर पाइथन में टपल्स वगैरह आ गया है देन यू कैन इमेजिन दिस। अभी तक तो टपल आया नहीं होगा ना आपका पाइथन में, ये नॉर्मल सेट्स की बात करते हैं। मैथ्स में जैसा आता है कि पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट नॉर्मल। ओके, तो सैलरी अगर 40,000 है तो, या सैलरी अगर 70,000 है तो कौन से आएंगे? मीट और प्राची है, क्योंकि एक की 70 है एक की 40 है। भले इसके बीच में 50-60 भी आता है, बट 50-60 इस टपल में तो है नहीं, तो इसलिए आप कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या सीखा? ऑर्डर बाय, वेयर, बिटवीन, इन, चार कीवर्ड, चार क्लॉजेस हमने सीखे। नाउ द लास्ट क्लॉज फॉर टुडे इज लाइक। अब लाइक का क्या यूज होता है? लाइक का सैलरी हटा देती हूँ, नेम से करते हैं लाइक, नेम लाइक। अब ये पैटर्न रिकग्निशन है। पैटर्न रिकग्निशन मतलब कोई भी चीज का पैटर्न। तो आज बेसिक वाला देखते हैं, m परसेंटेज। ओके, मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब, इसका मीनिंग होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, और m का मतलब क्या है? m पहले है, मतलब स्टार्टिंग विद m, उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स हो चलेगा। तो कैसा आ रहा है? मीट। अभी p परसेंटेज करने दो, तो आई गेट पार्थ एंड प्राची। अब देखो इसमें आफ्टर p वी हैव 4 कैरेक्टर्स, हियर आफ्टर p वी हैव 5 कैरेक्टर्स। इट डजंट मैटर। ओके, कोई भी पैटर्न आप ले सकते हो जो स्टार्ट हो रहा है p से। अगर कोई भी नाम है जो स्टार्ट हो रहा है p से, उसके बाद परसेंटेज है, मतलब कि n नंबर ऑफ, मतलब कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स p के बाद हो सकते हैं, इट वुडंट मैटर, और वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो
किसी को कोई डाउट है? मैं पी वाले में 2 कैरेक्टर ले सकते हैं, पी ए परसेंटेज ऐसे लिख सकते हैं। देख लेते हैं। PA% सिर्फ पार्ट है, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी ओके मैम। इम्प्लीमेंट करके देख लेने का। एक एक लाइन का कोड है तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दिस। और कौन थे जिसको एसक्यूएल डेवलपर वाला डाउट था? इज योर डाउट क्लियर और यू वांटेड टू आस्क मी समथिंग एल्स? नहीं मैम, मेरे में एक वो आपका जैसे डीबीएमएस बनाया था ना, हाँ, तो उसके अंदर मैं अगर टेबल क्रिएट करता हूँ ना तो सभी जगह पे टेबल हो जाता है। सभी जगह पे हो जाता है मतलब ये डीबीएमएस जैसे 2-3 और है तो सभी जगह पे वो नाम का टेबल क्रिएट हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो कनेक्शंस आपने, आपका सिस्टम तो एक ही है ना, एक ही यूजर से आप कर रहे हो एक्चुअली। जैसे मल्टीपल यूजर्स अगर आप यूजर वाली सिस्टम है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि राइट्स लिमिटेड हो जाएंगी। मतलब आप न्यू कनेक्शन बनाते हो उस टाइम पे आपने अगर उसको एडमिन राइट्स दे रखी होगी तो एडमिन राइट्स सारे कनेक्शन में एडमिन राइट्स हो जाएंगे, अगर आपने सारे कनेक्शन को एडमिन के हिसाब से बनाया। अगर आपने एक पर्टिकुलर यूजर की राइट दी है तो जब वो वाले यूजर से आप लॉग इन करोगे, जैसे आप स्विच यूजर करते हो ना पीसी में, जाके यूजर करते हो लॉग ऑफ करके, तो उस टाइम पे आप जिस यूजर से लॉग इन करोगे वो वाला कनेक्शन सिर्फ एक्टिव रहेगा। पर जैसे मेरे पास एक ही यूजर है, मेरा मल्टी यूजर नहीं है, तो मतलब कोई और यूज नहीं करता है, तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा कनेक्शन बनाऊं, तीसरा कनेक्शन बनाऊं, तो सबको मैंने एडमिन राइट्स दे के रखी है। अब यहाँ पे एसक्यूएल डेवलपर में हम जब एसक्यूएल प्लस में हम जब लॉग इन करते हैं तो वो पर्टिकुलर जिस यूजर पे अभी हम है उस यूजर पे लॉग इन करते हैं। तो अगर एडमिन है तो मतलब कि सारे कनेक्शन एक साथ एक्टिव हो रहे हैं। तो आप अगर टेबल बनाते हो तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि कौन से कनेक्शन पे आप टेबल बना रहे हो। ठीक है, तो आपको लॉग ऑफ करके स्विच यूजर करना है, या फिर मल्टीपल यूजर्स बना दो, न्यू यूजर ऐड कर दो, फिर लॉग ऑफ करोगे, फिर एक आप कनेक्शन बनाओ, फिर उस लॉगिन से भी अगर आप कोई टेबल बनाते हो तो पर्टिकुलरली सिर्फ उस कनेक्शन पे टेबल बनेगा। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ हाँ ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है किसी को? हाँ हाँ। ओके, आर यू क्लियर? यस मैम। ओके, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है इसके रिलेटेड? रैंडमली बुलाओ एक एक को। सो रहे हो क्या? म्यूट होंगे। नो मैम, ये प्रॉब्लम नो नहीं है, मैम, कोई आएगी तो आपको पूछ लेंगे। प्रैक्टिकल कर। ठीक है, ठीक है। तो नो क्लासरूम मैम। मैंने एक प्रोग्राम अपलोड किया है क्लासरूम में। ठीक है, आपको यही वाला, आपको फोटो क्लिक करना है तो यू कैन क्लिक द पिक्चर, और आपको अब भी इम्प्लीमेंट करना है। अभी बैठ जाओ, 3:30 बजे के पहले इम्प्लीमेंट करो और मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाना है। ठीक है, हो जाएगा? यस मैम। ओके, सो स्टार्ट डूइंग इट। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ, आप इसका फोटो क्लिक कर लो अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो। ठीक है, टेबल बनाना है, उसमें 5 एंट्री करनी है आपको। फिर लेट मी शो यू द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। No, it's too slow. Great, now it's not responding.
बहुत कुछ इंस्टॉल कर लिया मैंने, जुपिटर भी है, एंड्रॉइड भी है, ये वो, सो इट इज गेटिंग सो स्लो, सब अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। Okay, so create a table employee with fields employee ID, employee name, salary, department and city। ये city एक चीज मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है जो हमने इसमें नहीं किया है, ठीक है। इसमें city नहीं है, 4 ही कॉलम है। तो अभी आफ्टर एडिंग सिटी व्हाट आई हैव टू डू, एंटर 5 रोज, ठीक है, 5 रो एंटर करना आप, इंसर्ट इनटू टेबल करके, फिर सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉइज हु आर फ्रॉम सूरत। मतलब क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी लाइक सूरत, सिंगल कोट में सूरत लिख दो, सिटी लाइक सूरत कर दो, है ना। उस तरह से आप कर सकते हो। सॉर्ट द एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ नेम, या फिर सिटी इक्वल टू सूरत भी कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ नेम मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय नेम, ठीक है। डिस्प्लॉय एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज मोर देन 20,000 बट लेस देन 50,000। ये ग्रेटर देन लेस देन करके कर सकते हो, या बिटवीन 20,000 एंड 50,000 वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट द एम्प्लॉइज ऑफ सूरत एंड भरूच। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके वेयर सिटी इन ब्रैकेट में सूरत भरूच, तो जितने सूरत के जितने भरूच के, इन कैसे किया था हमने, यहाँ पे ऐसे किया था ना इन, तो 40,000 और 70,000 हो रहा था, वैसे सूरत एंड भरूच लिखना है सिर्फ आपको। ओके, अभी सिलेक्ट एम्प्लॉइज ऑफ सूरत भरूच, ओके ये हो गया। सिलेक्ट एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट्स विद ए, तो ये कैसे करोगे, ए परसेंटेज लाइक करके। ओके, इजी है ना, हो जाएगा अभी 5 मिनट में। मैम आपने ये एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन दिया, इसकी जगह हम टेबल किसी और चीज की बना सकते हैं, जैसे कार्स, फोन्स या फूड, हाँ, उसके बेसिस पे सिलेक्ट या कुछ करके। हाँ चलेगा चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ एक दिया है, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप सारी चीजें यूज कर रहे हो वो सब मुझे देखना है। ओके, तो आप कार्स, व्हीकल्स, फूड, एनीथिंग, शॉपिंग मॉल, यू कैन डू एनीथिंग, इट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। ठीक है, सो डू इट नाउ, आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर, और आप मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, जितनी जल्दी आपका कंप्लीट होगा उतनी जल्दी आपका अटेंडेंस देके आप लीव कर सकते हो। ओके ओके मैम, ओके। Okay, if you have uploaded your work already, write your enrollment number in the chat and leave. No issue. But wait. First show me. Screen share करके दिखा दो पहले, फिर you can leave. 49. Okay, scroll down. Okay, it's a screenshot. ठीक है, चलेगा। Done, upload कर दो। ओके, और मैम एक और स्क्रीनशॉट है, हाँ वो हाँ दोनों मैंने अपलोड कर दिए। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर लिख दो चैट में एंड यू कैन गो। ओके।
हेलो मैम। या मैम एक इशू आ रहा है, मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें ऐसा दिखा रहा है एरर एट लाइन 1, नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो नाम का आपने ऑलरेडी टेबल बना रखा है पहले। तो मैम वो अगर व्यू करना हो तो कैसे? वो सिलेक्ट उसके लिए कीवर्ड क्या था? मतलब नेम आपने सॉरी मैम, आवाज कट गई। टेबल बनाया है, एम्प्लॉय टेबल शायद आपने पहले भी बनाया या जो भी आप बना रहे हो वो टेबल ऑलरेडी। तो हाँ अगर मैम। आपको इफ यू वांट टू रिमूव द ओके टेबल देन डू ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल का नाम तो पुराना ओके। और मैम अगर वही टेबल यूज में लेना हो? यूज में लेना हो तो उसमें अपडेट करना पड़ेगा आपको। पहले डीईएससी टेबल करो, जो कॉलम्स है वो सेम है, क्योंकि कॉलम न्यू ऐड करना भी मैंने सिखाया नहीं है, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अभी नहीं बाद में कराऊंगी मैं। मैम मैं एक शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ, 1 मिनट। करो। मैम विजिबल? या ओके, नेम इज मैम ये वो डीएससी भी किया। ऑलरेडी है। हाँ ये ऑलरेडी है, इसलिए आप क्रिएट टेबल दोबारा नहीं कर सकते, इट्स ऑलरेडी देयर। तो कुछ और बनाओ, कोई हाँ और कुछ टेबल और बनाओ। बनाओ या इसमें एडिटिंग कर दो चलेगा। इसमें डेटा है, सिलेक्ट ओके ओके, पार्स करो। जस्ट अ सेकंड मैम। सेमी कॉलम रह गया, सेकंड लाइन में हाँ मैम। कॉलम करके एंटर कर दो। नो रो सिलेक्टेड, ओके आपने कुछ नहीं डाला है इसमें, तो इंसर्ट करके ये टेबल आप यूज कर लो, कोई बात नहीं। ब्रांड मॉडल एंड प्राइस। ओके मैम। ओके ओके मैम। हाँ
हेलो मैम, हाँ बोलो। और लाइक वाले ऑपरेटर में हम एंड यूज नहीं कर सकते? क्या यूज नहीं कर सकते? एंड हाँ, कर सकते हो ना ऐसे। व्हेन कैसे करना? हमें चलो हम स्क्रीन शेयर हमें करके मैं चेक बताती हूँ। करना है सूरत एंड ओके मैम, एक मिनट। हाँ, रुको रुको, मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर तो करके शेयर आपको मैडम। बताती हूँ। 1 सेकेंड, ओके, देखो। लाइक वाला करना है आपको, सूरत एंड भरूच है ना, तो नेम का कर देती हूँ मैं। सो लाइक टी एंड नेम लाइक एम। एंड कर रही हूँ ना, और कर दो। और हाँ, ठीक है, पता चला? तो ओके, 3% एंड एम परसेंट, या और एम परसेंट नहीं, नेम लाइक पूरा लिखना है, और करके नेम लाइक पूरा, ठीक है? खबर? ओके मैम, ओके, मैंने डायरेक्ट लिखा था। ओके, हाँ, ओके। Okay, share the screen 45. નથી દેખાતું સ્ક્રીન. ઓકે, હવે દેખાય છે. ઓકે ઓકે, નીચે જાઓ. ओके डन, अपलोड कर दो. गुड. एनरोलमेंट नंबर चैट में लखी दो ना, यू कैन लीव. हेलो मैम, हाँ बोलो. आपने वो सैलरी में वो रेंज की जगह पे स्पेसिफाई किया था ना कि सिर्फ ये दो वो वही दिखाए, वो कैसे हाँ, करते हैं वो फिर से बताओ। इन इन रुको, स्क्रीन शेयर करने दो मेरे को. ये इन દેખાય છે? હા હા હા, આવી રીતે. આ સુરત ને ભરૂચ પણ આ રીતે થઈ જાય ને? સુરત ભરૂચ પણ આવી રીતે થઈ જાય, કાં તો પેલું લાઇક વાળું કરવા માંગો છો, જેમ પેલા પૂછ્યો તેવી રીતે. સિટી લાઇક સુરત, મતલબ આ પેટર્ન ની જગ્યાએ સુરત લખી શકો આખે આખું સિંગલ કોટમાં, ઓર સિટી લાઇક અહીંયા પેલું ભરૂચ. ઓકે મેમ હું સ્ક્રીન શેર કરું? હા, હેલો મેમ, હા, વિઝિબલ છે? ઓકે, યસ ઇટ ઇઝ વિઝિબલ. જે આપણું સ્ટુડન્ટ્સ વાળું ટેબલ હતું ને તેમાં જ તે બધી ક્વેરીઝ કરી છે. ઓકે, શું એરર આવ્યું છે? વેર નેમ, અચ્છા ખાલી વેર નેમ એવી રીતે લખ્યું છે. ઓકે ડન. હા તો કરેક્ટ કર્યું ને પછી? હા મેમ, ઓકે, હા 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 નીચે હા. વાળું.
ઓકે ગુડ અપલોડ કર દો પેલું સિટીઝ જેવું કઈ કર્યું છે આમાં અચ્છા ઇન છે ને લાઈક છે બિટવીન છે બિટવીન ક્યાં છે इन बिटवीन यहाँ ऊपर एक ઓકે ડન ઓકે અપલોડ કર દો અને એનરોલમેન્ટ નંબર Okay. લખી દો અને જાઓ યસ નેક્સ્ટ મેમ સિટી વાળામાં લાઈક થી કર્યું તો પ્રોબ્લેમ આવે છે. કેમ શું પ્રોબ્લેમ આવે છે નો રો ફાઉન્ડ આવે છે. એન્ડ કર્યું છે તમે ઓર કરો એન્ડ તો પોસિબલ જ નથી ને સિટીનું નામ સુરત અને ભરૂચ બે વસ્તુ એકસાથે તો પોસિબલ નથી એટલે રાઈટ ઓર એટલે સિટી લાઈક સુરત ઓર સિટી લાઈક ભરૂચ આવી રીતે સ્ક્રીન દેખાય છે? હા દેખાય છે સિટી લાઈક સુરત સિટી નો રો સિલેક્ટેડ આવે છે. स्मॉल एस राइट कैपिटल एस टेबल में कैपिटल एस है ઓકે. हेलो मैम हाँ 44 बोलो ओके थोड़ा नजीक ले जा स्क्रीन मैंने कैमरा ऑन किया है. हाँ कैमरा थोड़ा नजीक ले जाओ स्क्रीन के ओके ठीक है डन गुड अपलोड कर दो और एनरोलमेंट नंबर लिख के यू कैन गो हेलो मैम. हाँ बोलो हो गया मैम एक्चुअली टेबल को मैंने बहुत बार सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज हेलो मैम. यस मैं मतलब वही मैम एरर आ रहा है मैम टेबल क्रिएशन में मैम पता नहीं क्यों मैम 5-6 बार लिखा मैम टेबल डिलीट भी किया पर पता नहीं मैम क्यों आ रहा है क्या error मैम आ ये रहा है सिंटैक्स देखो स्क्रीन शेयर करो या मैम
मैम ये क्वेरी है मैम। ये टेबल एम्प्लॉय आईडी नंबर वेर क्या सैलरी सिटी ओके फिर मैम पता नहीं मैम, यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि ये EMP आईडी नंबर वाले में लिया। MySQL सर्वर मैम ये MySQL यूज कर रहा हूँ मैम। ओके ये MySQL कर रहे हो ना। मेरा ओरेकल वाला सिंटैक्स है, मतलब SQL प्लस में ओरेकल का है ना, उसके सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब MySQL का सिंटैक्स थोड़ा अलग होता है। नो मैम, मैंने ये यूज किया है मैं टेबल पहले बना चुका हूँ इस पे मैम, पता नहीं मैम ऐसा एरर क्यों आ रहा है मैम। ये मैंने 2 बार टेबल ड्रॉप भी किया, वापस एग्जिट भी किया मैम। वो ओरेकल में बराबर है पास सब कुछ, या मैम उससे तो ऐसा फर्क नॉर्मल नहीं पड़ता सिंटैक्स वैसे। पे। यस मैम, मैं वो ओरेकल में पासवर्ड का इशू हो गया था वापस मेरा, तो इसलिए वापस मैंने ये यूज कर रहा हूँ मैम इसीलिए। वो मारिया डीबी वाला सिंटैक्स का होता है ना मैनुअल, वो है तो गूगल करो ना थोड़ा सा उसमें तो मैम किया तो फिर क्या प्रॉब्लम हुआ, उससे भी नहीं चल रहा। मैम, वो W3 स्कूल्स पे भी देखा मैम, तो ये सिंटैक्स तो सब सेम ही है मैम, पता नहीं मैम क्यों मैम, क्योंकि मैंने बहुत सारे टेबल बनाए हैं मैम, पता नहीं अभी हम पहली बार ऐसा हुआ। एम्प्लॉय आईडी नंबर, एम्प्लॉय नेम varchar, सैलरी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर, सिटी varchar। सही है यार, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। मैम मुझे भी वही प्रॉब्लम है मैम। ये मैम देखो मैंने ये बनाया भी है मैम। इतने सारे टेबल बना चुका हूँ मैम ऑलरेडी मैम, इसमें कभी एरर नहीं है मैम, इसमें एरर आया है। दूसरी टेबल बना दो और क्या कर सकते हैं। मैं तीसरी बार बना रहा हूँ ड्रॉप टेबल कर करके मैम। अच्छा ऐसा है, नाम चेंज कर दो। मतलब कंज्यूमर चल रहा है डॉक्टर चल रहा है ना, कंज्यूमर टेबल बना दो, कंज्यूमर टेबल पे एडिट कर दो, टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है ना मैम। बहुत सारे हैं कंज्यूमर, तो आपने मैम, बना मैं रखा डेटाबेस है ना चेंज कर दिया ऑलरेडी। मैम, पहले मैं नील यूज कर रहा था अभी। या मैम बहुत सारा है। हाँ तो कंज्यूमर टेबल ऑलरेडी आपने बना के रखा है ना, उसमें वो होगा ना नेम और वो सब डेटा तो होगा, कॉलम्स तो होंगे। यस मैम। हाँ तो वो यस टेबल मैम, पे लाइक बिटवीन और ये उसमें कर सब कर दूं? दो, चलेगा। हाँ ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके मैम, मैं कर देता हूँ उसमें ही। हाँ इसका 30 का स्क्रीन है। ओके क्या प्रॉब्लम है, इनवैलिड रिलेशनल ऑपरेटर, सिटी लाइक सूरत और सिटी लाइक भरूच, ऐसा लिखो। ओके। हेलो मैम, हो गया। हाँ बोलो। हो गया। ओके एक ही सेकेंड ना, 30 का देख लेती हूँ फिर आप शेयर करना। ठीक है चलो डन 30। हाँ नेक्स्ट कौन शेयर कर रहा था। मैम मेरा भी हो गया। हाँ कर दो शेयर। मैम हाँ मेरा भी हो गया। शेयर करो स्क्रीन। मैम शेयर हो गया। अभी नंबर लिख लूँ ना, 30 नंबर। हाँ एनरोलमेंट लिख दो एंड यू कैन गो। ओके इंसर्ट हो गया, फिर नीचे जाओ। ओके इन और लाइक। ओके डन, वेरी गुड, यू कैन गो। एनरोलमेंट लिख के फिर यू कैन गो। ओके मैम। थर्टी वन। ओके एक एक करके 47। प्लीज वेट, लेट मी सी 31's वीडियो फर्स्ट। 31 સ્ક્રીન ના થોડા નજીક લઈ જા, કંઈક આવે છે વચ્ચે કેમેરામાં, જો તારું હાથ આવે છે કે શું છે? હા
Okay, scroll down. ठीक है, अपलोड कर दो. गुड. एनरोलमेंट नंबर लिख दो एंड यू कैन लीव. ओके, नेक्स्ट कौन स्क्रीन शेयर कर रहा था? 47. ओके, शेयर करो. पाछू करो शेयर. एक बार स्टॉप કરીને पाछू करो. नो मैम दिख रहा. हाँ, दिख रहा है. ओके, स्क्रॉल डाउन करो. फोटोज. अच्छा, ये स्क्रीनशॉट है. हाँ, ठीक है. तो बाकी इन बिटवीन और वो सब कहाँ पे है? लाइक ये 2 फोटो में है सब कुछ. ये आपने से नाम अभी किया, चालू होने खुद किया कि उठाया? हाँ, खुद ही किया. ये सैलरी वाला है ठीक और है, ये चलो. नेम ऑर्डर वाला है. ओके, डन. और बाकी अपलोड कर इधर दो. है. कर हाँ, दो. ठीक है. मैम मेरा हो गया। ओके, शेयर योर स्क्रीन. दिखाई दे रहा है मैम? नहीं, स्टार्टेड शेयरिंग ऐसा आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है. नेट इश्यूज है शायद. अब दिखाई दे रहा है? नोप. स्टॉप करके वापस से स्टार्ट कर लो. हाँ, अब दिख रहा है. हाँ, अगेन फोटो डायरेक्टली दिखाओ ना. क्यों फोटो दिखा रहे हो मेरे को? नहीं मैम, मैं लिनक्स पे किया है और अभी मैं विंडोज पे हूँ। अच्छा, ठीक है, चलो. ओके, इन बिटवीन वेर इज लाइक. एक मिनट। हाँ मैम, ये रहा। ठीक है, गुड. अपलोड कर दो. राइट है एनरोलमेंट नंबर एंड गो. ओके मैम। चलो, नेक्स्ट कौन है? कौन भाई? Okay, share your screen. 34. Okay. Order by where? This is okay. ठीक है, कर दो अपलोड.
Yes, 39, share your screen. Okay. Okay, good. Upload it, enrollment number लिखो and you can go. नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? हो गया सबका? Ma'am, my work is done, ma'am. I will just show you. हाँ. This is a table flights, ma'am. I had just selected and just starting from Mumbai. Here this app flight starting. Here I just order by flight number. Here, ma'am, it is Okay. ma'am, here I had just put the condition for number of flights greater than 3 and less than 8. So, ma'am, I got only 4 only because, ma'am, only 4 is there between 3 to 8. That's why, ma'am. Okay. And starting like I, ma'am, on the last collector, I have that Delhi, Mumbai. Okay. Yes, ma'am. Here is. हाँ, F starting you have taken. Okay, good. कर दो upload and write your enrollment number, then you can leave. Okay, ma'am. मैम वो एसक्यूएल डेवलपर होता है वो साथ में हो जाता है 11G के साथ, ओरेकल 11G के साथ में ही आ जाता है। हाँ, आप डाउनलोड करोगे ना तो आपने वो दो, एक तो 1 of 2, 2 of 2 डाउनलोड किया होगा ना? हाँ मैम, लेकिन मैं विंडोज में सर्च कर रहा हूँ ना तब मेरा ऐसा आ रहा है। तो आपने शायद डाउनलोड नहीं किया होगा। ये 3 जिप फाइल डाउनलोड करने थे। रुको मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ओके मैंने ओके ऐसा आ रहा है। इसको ओपन मत करना, ये ओपन नहीं होगा। आप डी ड्राइव में नहीं, कहाँ पे रखा है आपने ये सब? मतलब क्या मैम वो जिप ये फोल्डर सब सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है। ओके, वहां पे खोलो, ओपन करो, हेलो ड्राइव ओपन करो जहाँ पे है। 1 मिनट मैम। हाँ ये ओरेकल 11G यहाँ पे है, उसके सारे वो सी ड्राइव में एक नाम का फोल्डर बन गए, उसके अंदर है सब कुछ। ओके वेट, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड स्क्रीन शेयर करके। ओके मैम। देखो मेरा डी ड्राइव है ना, दिख रहा है आपको स्क्रीन? हाँ हाँ, Yes, डी ma'am. ड्राइव के देखो, ये डी ड्राइव में मैं गई। आफ्टर दैट मेरा यहाँ पे 3 ये मैंने डाउनलोड करके रखे थे, फिर मैंने अनजिप किया इन दोनों को, 1 of 2 और 2 of 2 को, तो वो डेटाबेस में बन गया। इसको अनजिप ओके ओके मैम, मैंने वो तीसरी जिप फाइल है ना वो नहीं की है। हाँ ओके वो मैम वो 400 MB की है। ओके डन मैम। ये वाला तीसरा जिप फाइल आपको करना पड़ेगा डाउनलोड, ठीक है? फिर ओके अनजिप ओके करोगे तो एसक्यूएल डेवलपर के अंदर जो ये एप्लीकेशन है इसको करो। ओके ओके ओके।
Ma'am, can I share screen? Yes. Only one girl in class. I just noticed that there's one girl in my A and B batch, I think. Ma'am, is screen visible? Yes. Ma'am, I created table employee Okay. and inserted 5 rows, and according to the question, I completed this. Okay, in is there, like is there. Is it okay? Go down, scroll down. Okay, where's between? Ma'am, I used less than and greater than for salary. Okay, that is fine. You did good. 20,000. Use between also, okay, because it is a clause and we need to learn it. So use between also. Rest is fine, okay. Upload in class and then you can leave. Okay, ma'am. चलो नेक्स्ट कौन शेयर कर से फटाफट करो. मैम एक जनरल क्वेश्चन था मैम. हाँ बोलो. मैम वो जनरल क्वेश्चन था मैम ये एसक्यूएल में ऐसा एरर क्यों आता है मैम, ऐसा मतलब कौन सी एरर आ रही है? नो मैम वही वो टेबल वाले क्रिएशन में जो मैंने आपको दिखाया था ना मैम वही. हाँ वो एक्चुअली एसक्यूएल का सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है, ओरेकल का सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है. मतलब कंपनी अलग है, दोनों स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ही बना रहे हैं, बट थोड़ा सा उन्होंने जैसे varchar and varchar 2, तो मतलब कि मींस नथिंग, द फंक्शनैलिटी इज सेम, बट सिंस आप एक का कोड दूसरे के प्लेटफॉर्म में लिख रहे हो तब वो इश्यूज होते हैं. इसलिए मैंने कहा कि एक ही चीज पे स्टिक करते हैं सब लोग तो इजी होगा पढ़ना भी और पढ़ना भी. दैट्स व्हाई मैं तो वही मैम ये ओरेकल डाला था मैम, पता नहीं पासवर्ड का कुछ इश्यू था तो मैं पता नहीं मुझे वापस वो करना पड़ेगा, री इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको, इसीलिए. अच्छा ठीक है, अब देख लो. नहीं तो ऑनलाइन मैंने एक लिंक भेजा था क्लास के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में. अगर इमरजेंसी हो तो वो भी आप बीच बीच में यूज कर सकते हो. इट्स नॉट एन इशू, बट बेटर कि आप इंस्टॉल करके ही करो. आई वुड सजेस्ट दैट. या मैम. और कोई बाकी है स्क्रीन शेयर करना? मैम हमने एक बार वो एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट कर दिया, बाद में एसक्यूएल बंद करके वापस से खोलते हैं तो बाद में वो एम्प्लॉय वाला क्यों हम नहीं कर सकते? क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आपने सेकंड टाइम होगा आपको. आप अगर कमिट कर दोगे ना तो वो सेव हो जाएगा, अगर कमिट नहीं करते हो तो वो सेव नहीं होगा. ये वोलेटाइल मेमोरी है, तो अगर आप वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, अगर आप बंद करके चालू करोगे तो वो उड़ जाएगा, है ना. तो आपको सेव तो करना पड़ेगा. पे सेव तो किया नहीं है, तो सेव के लिए आपको लिखना पड़ेगा COMMIT सेमीकोलन. हाँ वो आपने बताया तो सेव हो जाएगा. ओके मैम. ચલો એનરોલમેન્ટ નંબર લખી દો બધા અને લેફ્ટ થઈ જાઓ. અહીંયા હું એટલે શેર કરીને ઓકે એટલે શેર કરીને બતાવવાનું કહું છું, કેમ કે તો મને ખબર પડે તમે લોકો કેવા છો, એટલે કોણ કામ કરે છે ટાઈમ ટુ ટાઈમ, તો ઓબ્વિયસલી માર્ક્સ પર ઇમ્પેક્ટ પડશે એનો. જે રેગ્યુલર मैम यस वो आपने बोला था ना भरूच और सूरत वाला सिलेक्ट करने को, वो कैसे करना है? वो मेरा नहीं हुआ, बाकी सब हो गया है. ओके अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि सिटी लाइक सूरत और सिटी लाइक भरूच ऐसा भी कर सकते हो, या फिर इन ब्रैकेट में मतलब पैरेंथेसिस में सिंगल कोट में सूरत कॉमा सिंगल कोट में भरूच, वे सिटी. ओके मैम. ऐसे ये दो तरीके हैं, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो. और मेरा बाकी का सब कुछ हो गया है. ओके नो प्रॉब्लम. आपको दिखाना है तो दिखा दो स्क्रीन शेयर करके. ओके देखो आई नो आप बाद में भी कर लोगे, इट्स फॉर एवरीबॉडी, आई एम सेइंग बाद में भी आप कर लोगे. सो बट अगर आप मुझे यहाँ पे दिखा देते हो तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली आप टाइम टू टाइम काम करते हो, इसलिए इट्स बेटर इफ यू शो इट टू मी. ओके मैम मैंने कैमरा ऑन किया है. ओके स्क्रॉल डाउन करो, नीचे जाओ नीचे जाओ. ओके सिटी ऑर्डर बाय नेम वेयर लाइक, ठीक है गुड. चलो वो लास्ट वाला करके फोटो अपलोड कर. हाँ 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 चलो एनरोलमेंट नंबर બધા લખી દો અને લેફ્ટ થઈ જાઓ. ઓકે પહેલા એનરોલમેન્ટ નંબર લખો, કેમકે હું મીટિંગ એન્ડ કરી દેવાની. કોઈને બતાવવું છે હજી તો બતાવી દો. हेलो मैम. यस हाँ वो एडेप्टर अभी तक नहीं जा रही, उसका क्या करें?
मैंने 3-4 बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया। मुझे सच्ची में आइडिया नहीं। आप सर्विसेज वाला टेक्निक करो, सर्विसेज मैंने वो रनिंग करो, बट अगर वो भी इंटरनेट से वो सब कर लिया फिर भी नहीं हो रहा। आई डोंट नो बेटा, सीरियसली आई हैव नो आइडिया। इसके अलावा दूसरा कोई तो सोल्यूशन अपलोड कैसे करूँ? आप ऑनलाइन, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था, paiza.com ऐसा कुछ लिंक है, उसमें एग्जीक्यूट कर दो। ओके ठीक है, ओके ચલો લખાઈ ગયું એનરોલમેન્ટ નંબર બધાનું? હું આના બેસિસ પર જ હું સ્ક્રીનશોટ નથી પાડતી, હા રેકોર્ડ કરું છું, સ્ક્રીનશોટ નથી પાડતી, તો હું ડાયરેક્ટલી એના બેસિસ પર એટેન્ડન્સ કરવાની છું, તો બધા યાદથી એનરોલમેન્ટ નંબર લખજો. તો મેમ બોલો મેમ SQL પ્લસ માં આપણે દર વખતે કોડિંગ કરીને ખાલી આઉટપુટ ને એવું જોઈ લઈએ તો ચાલે કે બીજું શું? તમારો અવાજ કપાય છે બેટા, મને સંભળાતું નથી. ચેટમાં લખી દે ને શું પૂછે છે, ચેટમાં લખી દો ફટાફટ. 44 ના SQL કરવાની જરૂર નથી. ઇટ્સ નો નીડ SQL ડેવલપર. એ તો ખાલી બતાવવા માટે મેં તમને બતાવી કે તમારું ટેબલનો ડેટા ક્યાં સેવ થાય છે એ જોવા માટે. એટલે તમે જે બી વસ્તુ કરો છો એ સ્ટોર તો થાય ને, ટેબલ કોઈ ડેટાબેઝમાં તો સ્ટોર થાય ને, તો દેટ ઇઝ વાય SQL ડેવલપર ઇઝ ધેર. દેટ ઇઝ એ SQL ડેવલપરનું કામ છે કે બધું સેવ કરીને રાખે, તાકી ફ્યુચર યુઝ માટે તમે કરી શકો. એન્ડ ઓફ કોર્સ સેવિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ના, નહીં તો ફાયદો શું છે, એકવારમાં ડિલીટ થઈ જાય. આટલો મોટા મોટા ડેટાબેઝ છે જેમાં માનો કે તમારે માર્ક્સનું ડેટા મારે મૂકવું છે, તો જો એ દર વખતે ડિલીટ થઈ જાય તો દર વખતે હું થોડી એન્ટ્રી કરવાની, હું તો ખાલી ફેચ કરીને જોવાની છું ને માર્ક્સ. સો દેટ ઇઝ વાય વી નીડ SQL ડેવલપર. But for your purpose, you just need to code and take screenshot and everything. That's it. Okay. SQL developer is just to show कि क्या store था. Okay. Okay, fine. So enrollment number लखाई गयो बधानु, कोई बाकी नहीं ना? चलो, you can leave. I'm ending the session.